ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah says in Quran, if you love Allah, then follow me. Allah will love you, and Allah will forgive all your sins, are forgiving and merciful. Good morning to everyone. Our topic for today's discussion is the lung compliance. It is not too big topic, but I will try my best, slightly complicated. So the lung compliance, definition of the compliance, what is lung compliance? Compliance, that is the extent to which the lung will expand for each unit increase in the transpulmonary pressure. That is called lung compliance. Yeah, you can say it is the ability of the lung. When there is increase per unit, increase in the transpulmonary pressure, ये वही capacity of lung है to which the lung can expand. Yeah, it is the ability of the lung to that extent of that extent to which the lung will expand when there is increase per unit increase in the transpulmonary pressure. When there is increase in the pressure, लंग की जो इस्तिताअत है, क़ुव्वत है एक्सपेंड करने की, उस क्वालिटी को, उस एक्सटेंट को, we are saying that is the lung compliance of the lung. The total compliance of both of the lungs, that is about 200 milliliter per centimeter of water for the transpulmonary pressure and total capacity. The lung has the ability to expand up to that limit. Yeah, you can see when there is increase 1 centimeter pressure of water and a transpulmonary pressure. So lung की जो expansion property है या extent है, that is about 200 milliliter. So here we are going to discuss the compliance of lung by diagrammatic presentation, graphic presentation. You can see here that in this graph, you can see that there is lung volume changes and its relation with the changes in the pleural pressure. You can see the combined graph that is called the compliance diagram of the lung. And you can see that this change in the volume with the change in the pressure, it is totally different during inspiration and expiration. You know that the respiration is consists of the inspiration and expiration. So this change in the lung volume per change in the pleural pressure, that is different and the two, right? The whole diagram we are saying that is called the compliance diagram of the lungs. The curve you can see here, that is the compliance, inspiration, inspiratory compliance curve, and the second one, that is the inspiratory compliance curve. You know that there are, you can see here that the compliance of lungs, simply, it is that ability of the lung. When there is increase, यानी transpulmonary pressure की जो change है, उसके मुताबिक लंग की जो maximum limit है of expansion, maximum limit of expansion, that is called compliance of lung. यानी simple है, that is the ability, that is the extent to which the lung will expand. When per increase in the, ये जो प्रेशर ऑफ वाटर हम इसलिए लेते हैं कि हम वाटर को बेस बनाते हैं और उसका प्रेशर के साथ जो पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर की जो प्रेशर है, अगर इतना ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज तो उसके लिए जो लंग्स की कैपेसिटी है इन नॉर्मल इंडिविजुअल अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर बोथ द लंग्स, दैट इज 200 ml. यानी डेफिनेशन सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है. कंप्लायंस क्या है? दैट इज द एबिलिटी, ये लंग्स की ताकत है, दैट इज द extent the lung will expand when there is increase per centimeter
ऑफ वाटर इंक्रीज हो, प्रेशर की, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है। अभी हमने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम सो मच सिंपल, होल डायग्राम को हम क्या कहते हैं कि द होल डायग्राम इज कॉल्ड कंप्लायंस डायग्राम ऑफ द लंग। कंप्लायंस डायग्राम, जो होल डायग्राम है, दैट इज कंप्लायंस डायग्राम ऑफ द lung. You can see the two curves. One is that one that is expiratory curve represent करती है, और ये जो this curve it represents the change in the volume. Volume जो की changes है during inspiration when there is change in the pressure. तो इस curve को हम क्या नाम देंगे? इसको हम कहेंगे inspiratory compliance curve. And the second one that is the expiratory compliance curve. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो कंप्लायंस की, इट इज डिटरमिन्ड बाय द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग, बाय द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग। जो इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग है, दैट इज वी सब डिवाइड द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग। ओवरऑल लंग की जो इलास्टिक फोर्सेस है, वन इज द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग टिश्यू, यानी लंग टिश्यूज की अपनी इलास्टिक फोर्सेस, and the second one the elastic forces caused by the surface tension of the fluid that line the inner surface of the alveoli. ने समझ में आए कि इस किस चीज से हम डिटरमिन करते हैं? सिंपल, कि ये जो कंप्लायंस ऑफ द लंग है, इसमें टोटली जो रोल दैट इज प्लेड बाय द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग ओवरऑल एज अ होल, और फिर उन इलास्टिक फोर्सेस को हम सब डिवाइडेड करते हैं। वो elastic forces, they are caused by, they are generated by the surface tension of the fluid, and that fluid is lying the inner surface of the alveoli. And the second one जो lungs की अपनी elastic forces, ये अभी now we are going to discuss what is the elastic forces of the lung. ये आप, there are two main structure inside the parenchyma of the lungs. One is the elastin and the second one is the collagen. These are the fibers. These are the contractile units. Now we are saying that these volume changes, pressure changes के साथ totally different during inspiration and expiration. हम अगर expiration को लेते हैं, अगर lung की during expiration the lung is deflated form. When lung is deflated, ये जो elastin and collagen है, ये इनकी क्या कंडीशन होगी? कंट्रैक्टेड फॉर्म में, और हम कहते हैं कि लंग की जो है केंट, KINKED, केंट का मतलब है जस्ट लाइक करो, कंट्रैक्टेड है। एंड दिस इट इज अ पैसिव मैकेनिज्म, यानी देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी। एंड द सेकंड वन, व्हेन द लंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यू नो दैट देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द लंग. When there is expansion of the lung, there is stretching of these two fibers, the elastin and collagen. These are the two fibers. There is stretching of that, and we are saying that the lung जो है, ये जो है unkempt, right? Now we discuss the elastic forces of the lung by itself, and now the second, that is the elastic forces produced by the surface tension. जो सरफेस टेंशन, ये जो इलास्टिक फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं या काज करते हैं, सरफेस टेंशन किस चीज के है? दैट इज वो जो फ्लूइड है लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द एल्वेओलाई। यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोई मुश्किल ना हो, कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये कंप्लायंस जो है, ये कोई क्या है? व्हाट इज कंप्लायंस? दैट इज द एक्सटेंट टू विच द लंग विल एक्सपैंड. दैट इज द एक्सटेंट to which the lung will expand for each unit increase in the transpulmonary pressure. That is called the compliance of lung. वही एबिलिटी, वही ताकत, वही इस्तिताअत लंग की कि प्रेशर में चेंज हो पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, चेंज हो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. Transpulmonary pressure, the simple diagrammatic presentation. What is transpulmonary pressure? Here you can see this is the alveolar pressure here, and this one is the pleural pressure, and this is the pressure. Trans means through, pulmonary क्या है? membrane है, वही pressure. This is the transpulmonary pressure. Now you know that when there is increase in the transpulmonary pressure, और उस transpulmonary pressure के लिए जितना भी
लंग की एबिलिटी और कैपेसिटी है टू एक्सपेंड, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं? कंप्लायंस ऑफ, दैट इज जस्ट कंप्लायंस एंड दैट कंप्लायंस ऑफ बोथ द लंग्स दैट इज 200 ml, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। पर सेंटीमीटर इंक्रीज प्रेशर में हो, नो बोथ लंग्स की जो कंप्लायंस है दैट इज अबाउट 200 ml, यानी पर सेंटीमीटर के लिए कंबाइन। फिर हम ये क्लेम करते हैं कि ये जो कंप्लायंस है लंग की, इसकी जो मेन रोल प्लेड, इट इज डिटरमिन्ड जो बाय किस चीज से? इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग। ओवरऑल हम लेते हैं इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग। फिर उन इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग को एक आप देख सकते हैं, एक लंग की बाइट सेल्फ जो इनसाइड लंग टिश्यूज की इलास्टिक फोर्सेस, एक है लंग टिश्यूज की इलास्टिक फोर्सेस, और द सेकंड वन जो है ये इलास्टिक फोर्स इट इज प्रोड्यूस्ड बाय या caused by the surface tension of the fluid that lines the inside wall of the alveoli and other lung air spaces. अभी हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह डिटरमिन करेंगे, हम किस तरह हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग बाय इटसेल्फ। यू नो दैट देयर आर टू types of fibers. One is the elastin, the second one is the collagen, and these are the two fibers. These are the contractile units. They are having the ability to contract and they are having the ability to stretch में ये elongate होना, इनके elastic है। These are the fibers, they are elastic. ये contract भी, सुकड़ना भी इसका है, और elongation भी, stretching के जरिए इसकी elongation है। डिटेल में मैं जानना नहीं चाहता कि कौन सा मैकेनिज्म है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन, कौन सा में, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि हाउ द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एंड हाउ द contraction या stretching and what is the mechanism, how the stretching, उस डिटेल में जाने। सिंपली ये क्या चीज है लंग की अपनी जो इलास्टिक फोर्सेस है इलास्टिन एंड कोलेजन पे डिपेंड करती है। These are the two structure, the two fibers, they are responsible for the elastic forces of the lung by itself. Number two, now we are going, we are also second type of elastic forces जो है वो, that is the elastic forces caused by the surface tension. Surface tension कौन सा structure? ये जो lining है fluid जो लाइन करती है एल्वेओलाई की इनर सरफेस को, उसकी सरफेस टेंशन होती है, एंड देयर सरफेस टेंशन इट प्रोड्यूसेस द इलास्टिक फोर्सेस एंड दोस फोर्सेस दे आर ट्राइंग टू कोलैप्स द लंग। यानी बेसिक आप सोच ले कि इसकी क्या अहमियत है। देयर इलास्टिक फोर्सेस दे आर ट्राइंग टू कोलैप्स द लंग, और वही जो इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग के इटसेल्फ जो है वही भी दे आर ट्राइंग टू कोलैप्स द लंग। अभी हमने डिस्कस किया कि कौन से इलास्टिक फोर्सेस हैं लंग की, वही इलास्टिन, वही कोलेजन, द फाइबर्स, दीज आर द इलास्टिक फाइबर्स, कंट्रैक्ट भी होना और एलांगेट भी होना बाय द स्ट्रेचिंग। ये मैंने आप लोगों को ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, किंट क्या है? जस्ट लाइक दैट मींस करो। ये जब कंट्रैक्ट होगी तो जस्ट लाइक दैट करो की तरह होगी, और जब ये स्ट्रेच होगी तो एलांगेट होगी। और इसका मेन काम क्या है कि that the elastic forces of the lung and as well as the elastic forces caused by the fluid, by the surface tension of the fluid lying the inner aspect of the alveoli, इनका काम क्या है कि collapse of the lung. Now the elastic forces caused by the surface tension is slightly complex. The reason is that हम उसको किस तरह कंपेयर करते हैं, डायग्राम में मैं आप लोगों को बताऊंगा। Here you can see that there is comparison of the compliance diagram of एक हमने ये किया कि एक here you can see that is the lung, the alveoli that is filled with the air filled alveoli, right? Alveolus है, right? Alveoli that is the plural, and the second one इसमें water, saline filled alveoli। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लंग alveolus में क्या है? when there is the air is present inside the alveolus, so there is interface
देयर इज इंटरफेस, इंटरफेस क्या है, कम्बिनेशन है, फेसिंग वन अनदर, यूनियन है, किस चीज की, इनसाइड एयर प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर जो फ्लूइड है ये जो लाइन करते हैं इनर सरफेस ऑफ द एलियोलाई, इन दोनों के दरमियान इंटरफेस है, इन दोनों के दरमियान इंटरफेस है। हियर द टू फोर्सेस, here the two elastic forces, they are responsible for the collapse of lung. One is the elastic force caused by the surface tension of the fluid lining, और second ये जो lung की parenchymal tissues की जो elastin and collagen है, यानी two forces are present here to collapse the lung. यहाँ पर here no air is present, here the saline is present, so there is no interface between the air and the fluid lining there, because there is no air in this lung, this alveolus, right? So इसमें हमने आप लोगों की समझाने के एक एलियोलस को हमने लिया, उसको एयर से फिल किया, सेकंड एलियोलस को लिया, उसको फिल किया किस चीज से, सेलाइन से। जिस एलियोलस में एयर है तो यहाँ पर एयर है, और यहाँ पर आपके साथ इनर साइड पे जो एलियोलस में क्या है, द फ्लूइड है लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द एलियोलस, तो उसमें क्या है, यानी एयर भी प्रेजेंट है, फ्लूइड भी प्रेजेंट है, दोनों के दरमियान कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे को फेस करती है, दूसरे इंटरफेस हम इसको कहते हैं, कोई मुश्किल नहीं, इंटरफेस करती है। यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर क्या है कि एयर नहीं है, सो देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड द फ्लूइड लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द एलियोलस। तो क्या डिफरेंस आया, हियर ओनली द elastic forces of the lung, they are responsible to collapse the lung. तो इस कंपैरिजन हम इस तरह करते हैं that इसका नेट रिजल्ट ये हुआ that इसमें ये है, when the transpulmonary pressure to expand this lung three times more, यानी more 2 times or 3 times the transpulmonary pressure that is required to expand the lung, क्योंकि ये दो फोर्सेस की जो इलास्टिक फोर्सेस है, इन दोनों की क्या है, दोनों का फंक्शन ये है कि कोलैप्स ऑफ लंग। यहाँ पर फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक और स्ट्रक्चर है जो सर्फेक्टेंट है, उनका क्या काम है, ये किस तरह नेचर ये दो फोर्सेस तो लंग को कोलैप्स करती है, लेकिन लंग जो है ये एक्सपेंड होना ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, फिर डिफ्लेट होना ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो नेचर ने और भी मैकेनिज्म दे आर गिफ्टेड बाय द गॉड, तो ये जो कंटिन्यू रखना है, तो मेंटेन रखना है respiration. So when the lung filled with the air, there is interface between the alveolar fluid and the air in the alveoli. In the case of the saline filled lung, there is no air fluid interface, therefore the surface tension is not present, because here is no, the fluid is here but there is no air, so there is no surface tension. यहाँ पर surface tension भी है जो इलास्टिक फोर्सेस को प्रोड्यूस करती है, और इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग भी pressure in this case, that the transpleural pressure required to expand air-filled lung are about as greater as to the elastic force present here in that alveolus which is filled with the saline. The reason is that यहाँ पर दो फोर्सेस हैं लंग को कोलैप्स करने के लिए, इलास्टिक फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूइड लाइनिंग द इनर सरफेस, और सेकंड जो है दैट इज द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग। यहाँ पर सरफेस टेंशन नहीं है, हियर इज नो सरफेस टेंशन बिकॉज हियर इज नो एयर इज नॉट प्रेजेंट, जो इंटरफेस है वो नहीं है, जब नहीं है तो फ्लूइड ये सब चीजें डिस्टर्ब होगी, सो द सरफेस टेंशन इज नॉट प्रेजेंट। सो here only the forces, the tissue forces are operative in the saline solution, filled lung जो है,
सो इसमें अभी क्या हमारा कंक्लूजन क्या आ गए? In this, we can conclude that the tissue forces tending to cause collapse of air-filled lung represent only about one third of the total lung elasticity. यानी और ये क्लियर हो गए. और while the elastic forces that is produced by the lung, पैरेन्काइमा में जो दो स्ट्रक्चर है इलास्टिन एंड कोलेजन, तो यहाँ पर जो इलास्टिक फोर्सेस they are playing a role only one third role. So it is that the elastic forces produced by the surface tension is 2 times, यानी टोटल थर्ड अगर टू थर्ड जो है ना इन फोर्सेस का इलास्टिक फोर्सेस का रोल है, वन थर्ड जो है द रोल इज प्लेड बाय द फोर्सेस, they are the elastic forces, they are generated by the lung itself, right? So this is all about the what is the compliance और कौन से factors है they are responsible to determine the compliance और उसके लिए उनका क्या रोल है. So much simple. अगर आप लोग कहते, मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करता हूँ कि लंग कंप्लायंस कोई मुश्किल नहीं है. इट इज दैट एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक when there is change in the transpulmonary pressure, उस पर यूनिट प्रेशर के लिए लंग की जो है लंग की जो कैपेसिटी है तो एक्सपेंड उस एबिलिटी ऑफ द लंग को, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस. उसमें फैक्टर दिया हमने टोटल जो बोथ लंग्स की कंप्लायंस है 200 ml है फॉर 1 सेंटीमीटर जो प्रेशर ऑफ वाटर है उनके लिए. और इसी तरह इसका मतलब है कि अगर 1 सेंटीमीटर प्रेशर ऑफ वाटर ट्रांसपल्मोनरी इंक्रीज हो तो लंग की कैपेसिटी अंडर द नॉर्मल कंडीशन इन द एडल्ट इंडिविजुअल, तो लंग की जो एक्सपेंशन पावर है, जो एक्सपेंशन कैपेसिटी है, जो एक्सपेंशन एबिलिटी है, that is about 200 ml. So that is the extent to which the lung will expand as per unit increase of the transpulmonary pressure. Now we are going that these are the two, the elastic forces produced by the lung, the elastic forces produced by the surface tension of the fluid lining the inner. तो ये इनका काम तो है कोलैप्स ऑफ लंग, लंग को कोलैप्स करना. और वही हमने कहा कि जिसमें ये दोनों फोर्सेस प्रेजेंट हो, इलास्टिक फोर्सेस caused by the surface tension और प्लस द इलास्टिक फोर्सेस, ये जो लंग है जो एयर फिल्ड है प्लस द इलास्टिक फोर्सेस, ये दोनों क्या काम करते हैं? टू टाइम्स रोल इज प्लेड बाय द इलास्टिक फोर्सेस caused by the surface tension and one रोल इज प्लेड बाय द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग. तो यहाँ पर 3 टाइम्स ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी टू एक्सपेंड द लंग, बिकॉज टू फोर्सेस के अगेंस्ट ये हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर टू एक्सपेंड. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ओनली द इलास्टिक फोर्सेस प्रोड्यूस बाय द लंग इटसेल्फ, सो लेस प्रेशर की जरूरत होगी टू एक्सपेंड. Now there is an important, the nature have gifted a special system to the alveolar system of the lungs, and that is the surfactant. और इसका effect किस चीज पे? surface tension पे. Now surfactant, what is the surfactant? How it is synthesized? How it is secreted? What is the main function of the surfactant? And what is the composition? Now we are going to discuss that surfactant. ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. surfactant है क्या? Surfactant, these are just surface active agent है present inside the water. ये जो लाइन करती है एलियोलस को, ये जो फ्लूइड है इसमें क्या है? सरफेस एक्टिव एजेंट्स है. और ये इसका जो मेन फंक्शन है ऑफ द सर्फेक्टेंट to reduce the surface tension. इसका मेन फंक्शन क्या है? यानी सर्फेक्टेंट है क्या? इट इज, ये कंपोजिशन में मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज है. इट इज जस्ट बाय डेफिनेशन ये आप ये कह सकते हैं, these are the surface active agent present in water
और कौन सा फ्लूइड में जो लाइन करती है इनर सरफेस ऑफ द एलियोलस, उसको सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन क्या है? दैट इज डिक्रीज इन द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड लाइनिंग। ये जो फ्लूइड लाइन करती है इनकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना। और सरफेस टेंशन का क्या रोल है? वही प्रोडक्शन ऑफ द इलास्टिक फोर्सेस। और वही इलास्टिक फोर्सेस का क्या फंक्शन है? कोलैप्स ऑफ लंग। तो ये सर्फेक्टेंट, ये जो लंग है, दैट इज लाइंड बाय द फ्लूइड हैविंग द सरफेस एक्टिव एजेंट एंड दैट इज कॉल्ड द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट कहां पे बनती है, कहां से ये सिक्रीट होती है? सो देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 10% ऑफ द, ये जो सरफेस एरिया है, ये जो एलियोलस की सरफेस एरिया है, इसकी कंपोजिशन में 10% रोल is played by those cells. They are synthesizing and they are secreting the surfactant. They are synthesizing and they are the secreting. These cells, they are called, these are the specialized cells, surfactant secreting epithelial cells. Surfactant secreting epithelial cells. और इसको क्या कहते हैं? टाइप 2 सेल्स भी कहते हैं, टाइप 2 सेल्स ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। तो सर्फेक्टेंट अभी इसकी यानी कहां से सिक्रीट होती है? स्पेशलाइज सेल है, वही सेल रोल प्ले करती है। ये जो सरफेस एरिया है हर एलियोलस में, उसमें जो कंपोजिशन जो है सरफेस एरिया की, 10% रोल इज प्लेड बाय दो सेल्स। समझ में है? वही सेल, उनको टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। और उसको आप सर्फेक्टेंट रिलीजिंग या सिक्रीटिंग, सर्फेक्टेंट सिक्रीटिंग और रिलीजिंग एपिथेलियल सेल्स भी कह सकते हैं। When there is release of the surfactant, that surfactant, ये अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि what is the mechanism, how it decreases the surface tension. सर्फेक्टेंट की कंपोजिशन को, फर्स्ट सर्फेक्टेंट की कंपोजिशन क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ द लिपिड्स, प्रोटीन एंड आयंस। It is a mixture of the lipid, proteins and ions, and they are present inside the water. क्या composition है? Sorry, composition ये water में कुछ surface active agents है। कौन है? कौन से agents हैं? Those agents, they are the phospholipids, they are proteins in nature, they are the ions, ions में especially the calcium ion। और ये जो phospholipid में है, फॉस्फोलिपिड ये जो है सर्फेक्टेंट की, इसमें डाई फार्मेटाइल फास्फेटाइडल कोलिन, फार्मेटाइल फास्फेटाइडल कोलिन, ये एक फास्फोलिपिड है। इसके साथ और भी फास्फोलिपिड्स हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन द एपोप्रोटीन फॉर्म में है, एपोप्रोटीन। और आयन जो प्रेजेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम। ये तीन वाटर में प्रेजेंट होके तो सर्फेक्टेंट बनाती है। और सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन क्या है? रिडक्शन ऑफ द सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन को ये रिड्यूस करती है, ये जो सरफेस टेंशन जो इलास्टिक फोर्सेस प्रोड्यूस करती है, और उनका काम जो कोलैप्स ऑफ लंग है उसको प्रिवेंट कर। राइट बेटा, यू नो, समझ में आया कि कोई मुश्किल नहीं। सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन है, सर्फेक्टेंट का क्या फंक्शन है? सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन है कि लंग को कोलैप्स होने से बचाती है। मैं किस तरह बचाती है? रिडक्शन और डिक्रीज इन द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द एलियोलस या एलियोलाई। उनकी जो इनर सरफेस को जो प्रिवेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं? कवर करती है में सर्फेक्टेंट दे आर प्रेजेंट, they are responsible to reduce the surface tension। जो surface tension reduce होगी, लंग को कोलैप्स से बचाती है। लंग्स को कोलैप्स से, ये एलियोलर जो स्ट्रक्चर्स है या एलियोलर सिंगुलर हम लेते हैं, उनको कोलैप्स से बचाती है। और इस जो एक्सपेंशन है इसको मेंटेन रखने के लिए थ्रू आउट द लाइफ। सो दैट इज अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स, that is a specialized mixture gifted by the God। ये जो हमारा सर्वाइवल है ये इस सर्फेक्टेंट की वजह, as far as the respiratory system is concerned। अगर सर्फेक्टेंट ना हो तो क्या होगी?
वही इलास्टिक फोर्सेस, जो सरफेस टेंशन क्रिएट करती है वही इलास्टिक फोर्सेस, जो लंग क्रिएट करती है वो इसको कोलैप्स करेगी। इसका हम एक अगर क्वांटिटेटिव इसका कंपैरिजन हम लेते हैं तो एक एलियोलस को हम लाइन करते हैं जो प्योर वाटर का जो प्योर वाटर का जो सरफेस टेंशन है दैट इज अबाउट 72 डायन्स पर सेंटीमीटर। 72 डायन ये एक इकाई है, यूनिट है। और एक में हम इस एलियोलस को मिलाते हैं विद द फ्लूइड नॉट कंटेनिंग द सर्फेक्टेंट, तो वहां पर इसकी क्या होगी सरफेस टेंशन दैट इज 50 डायन्स पर सेंटीमीटर। और एक फ्लूइड हम वो फ्लूइड को लेते हैं जो लाइन करते हैं इनर सरफेस को, हैविंग द नॉर्मल कंसंट्रेशन, हैविंग द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द सर्फेक्टेंट, तो वहां पर क्या होगी 5 to 30 डायन्स पर सेंटीमीटर। 5 to ये इतना डिक्रीज करती है। और ये डिक्रीज कितना बनती है, ये डिक्रीज बनती है 1/12 to 1/2, 1/12 अप टू 1/2, इतना सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है। और उस लिमिट पे रखती है कि इंस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ये लंग्स का एक्सपेंशन। इसके लिए एक सिंपल सा वो है जो प्रेशर का मेन रोल है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ये सिंपल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं जो प्रेशर है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर दैट इज इक्वल टू 2 into सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय द रेडियस। क्या है 2, यानी वी आर सेइंग दैट द सरफेस टेंशन इट कोलैप्स, यानी द सरफेस टेंशन प्रोड्यूसिंग the elastic forces and that forces they are responsible to collapse the lung। ये किस तरह कोलैप्स करती है, हाँ ये मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को मैं बताऊं कि किस तरह ये जो सरफेस टेंशन है हाउ इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन, देयर एज अ मैकेनिज्म। और वो मैकेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है कि दैट the molecules of the surfactant के जो molecules है स्पेशली फास्फोलिपिड जो सर्फेक्टेंट में जो कंपोजिशन में प्रोटीन्स भी है, फास्फोलिपिड भी है, आयंस भी है, वाटर भी है, लेकिन ये जो डिक्रीज करती है सरफेस टेंशन को मेनली द फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड ये जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया डाई पैल्मिटाइल फास्फेटाइडल कोलिन प्लस अदर फास्फोलिपिड्स ये डिक्रीज करते हैं। हाउ इट डिक्रीजेस, यानी द मॉलिक्यूल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द phospholipids या they are responsible for reducing the surface tension। किस तरह करती है, पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल they are properly dissolved form में होता है, while the remaining they are spread over the surface of the water in the alveoli। कुछ मॉलिक्यूल्स इनके टोटली डिसॉल्व होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल वो सरफेस को कवर करती है वाटर की जो लाइन करती है। सो ये मेन मैकेनिज्म है। और ये रोल क्या प्ले करती है कि मेन रोल इज प्लेड बाय द फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड बहुत सारे हैं लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया कि डाई पैल्मिटाइल फास्फेटाइडल कोलिन, वो और उनके साथ और मिलके, तो ये किस तरह हम इस प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज एन इक्वेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ pressure। Pressure is equal to 2 into surface tension over the radius of the alveolus, right? अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक एलियोलस को क्या करते हैं, अक्लूडेड करते हैं, क्लोज करते हैं, बंद कर देते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अक्लूजन ऑफ द एलियोलस, उसमें क्या होगा, जो एयर पैसेज है वो प्रिवेंट होगी। और जब ये एयर प्रिवेंट होगी तो वहाँ पर जो फोर्सेस हैं स्पेशली वही जो इलास्टिक फोर्सेस है ये क्या करते हैं, टेंड टू कोलैप्स। ये जो सरफेस टेंशन है जो प्रोवाइड करती है इलास्टिक फोर्स, ये क्या करती है, टेंड टू कोलैप्स द एलियोलाई। और ये किस तरह करती है, दिस सरफेस टेंशन
creates a positive pressure inside the alveolus, and that pressure is attempting to push the air outside. यानी ये किस तरह क्लोज करती है कि ये जो सरफेस, जब हम किसी एलियोलस को हम क्लोज करते हैं तो वहाँ पर जो सरफेस टेंशन है तो क्या करती है कि पॉजिटिव फोर्सेस डेवलप करती है, और वही पॉजिटिव फोर्सेस क्या करती है, एयर को उस एलियोलस से निकालना। जब एयर निकल जाएगी, so there will be no interface between the air and फ्लूइड, इनके इंटरफेस नहीं होगी, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या करती है, वही पॉजिटिव फोर्सेस जो एयर को बाहर पुश करती है। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका एग्जांपल हम एक नॉर्मल एलियोलस को लेते हैं, एवरेज साइज अंडर द नॉर्मल कंडीशन। एक एलियोलस का नॉर्मल इंडिविजुअल एडल्ट का लेते हैं और उसका क्या होता है, एवरेज होता है 100 माइक्रोमीटर। 100 ये जो कंपोजिशन ऑफ द लंग है, इसमें जो नॉर्मल कंडीशन में एडल्ट इंडिविजुअल में जो एवरेज साइज एलियोलस की है दैट इज 100 माइक्रोमीटर। यहाँ पर इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस रेडियस हैज एन इनवर्स effect on the pressure as inverse relation. It means when there is increase in the radius of the alveolus, there will be lesser pressure. When there is decrease, inverse relation, a decrease in the radius of the alveolus, right? So there will be greater pressure will be present inside the alveolus, right? और इसका हम ये सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक एल्वियोलस को लेते हैं और उस एल्वियोलस को हम इसका इनर सरफेस कवर करते हैं फ्लूइड के साथ, एंड दैट फ्लूइड कंटेनिंग द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, तो अंडर जो नॉर्मल एल्वियोलस में जो प्रेशर होगी दैट इज प्रेशर 4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अगर उसको हम कवर करते हैं विद वाटर या विद द फ्लूइड हैविंग नो सफिशिएंट या है एब्सेंट है सर्फेक्टेंट, तो वहां पर प्रेशर होगी 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये जो डिफरेंस है 4 जो नॉर्मल मिलाती है सर्फेक्टेंट हैविंग द फ्लूइड हैविंग द सर्फेक्टेंट, तो उसका क्या है 4 सेंटीमीटर है, और जो वाटर मिलाती है उसका है 18। ये जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान दैट इज 4.5। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट रोल, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द सर्फेक्टेंट, राइट। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये रेडियस की क्या इंपॉर्टेंस है? रेडियस इज की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसका इनवर्स रिलेशन है। हम एक न्यू नेट को प्री मैच्योर न्यू नेट को लेते हैं, इसमें आप ये चीज मेमोराइज करें। अगर हम एग्जांपल ले देते हैं that the radius of the alveolus plays an important role in the pressure inside the alveolus, और इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। इसमें आप लोग ये बात भी मेमोराइज करें कि सर्फेक्टेंट जो गेस्टेशनल एज है या गेस्टेशन है, तो उस जेस्टेशनल या गेस्टेशनल एज में 6 to 7 मंथ पे सर्फेक्टेंट का सिंथेसिस और सर्फेक्टेंट का रिलीज है। समटाइम्स अंडर सर्टेन कंडीशन ये जो सिंथेसिस और रिलीज जो है ये डिले भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 6 मंथ गेस्टेशनल में या गेस्टेशनल एज में ये जो सर्फेक्टेंट बनना शुरू हो जाती है। ये जो प्री मैच्योर नेओनेट पैदा होते हैं इनका जो होता है ये रेडियस दैट इज यूजुअली 1/4। ये जो नॉर्मल रेडियस है, एवरेज रेडियस है 1/4 होता है, 1/4 होता है। when there is the premature newborn baby, उसमें क्या है कि एक तो सर्फेक्टेंट का या तो बहुत लेस मकदार ऑफ अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट, या उसमें ये है कि बिल्कुल या सर्फेक्टेंट है या नहीं है, या उसमें ये है कि रीड बहुत स्मॉल है 1/4 है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लंग्स की कोलैप्स होने की चांसेस है। और वो जो सिंड्रोम
रिजल्ट होते हैं दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ द न्यूबॉर्न। यानी ये जो प्री मेच्योर होते हैं ये दे आर एट हाई रिस्क, उनकी जो मॉर्टिलिटी रेट है बहुत ज़्यादा है। द रीज़न इज दैट यानी मॉर्टिलिटी रेट इन द प्री मेच्योर न्यू बॉर्न बेबीज इज़ वेरी वेरी हाई। द रीज़न इज दैट कि ये जो इनकी पैदाइश के वक्त एक तो ऑलरेडी प्री मेच्योर है, वेल डेवलप नहीं है, एल्वियोलस या एल्वियोलाई डेवलप नहीं है फुली, प्री मेच्योर है, टाइम नहीं मिला है कि फुली, तो रेडियस ऑफ द एल्वियोलाई ये डिक्रीज होगी, 1/4 होगी। सेकंड बात ये जो प्री मेच्योर में है, प्री मेच्योर 6 मंथ 7 मंथ्स और या 8 मंथ सब पे पॉसिबल है उनकी जो बर्थ। सेकंड जो फैक्टर ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग मेमोराइज करें, ये आपको एम्ब्रियोलॉजी में भी काम आएगा, नेक्स्ट इन गायनेकोलॉजी ऑफ इन मेडिसिन सब चीज़ों में ये काम आएगी। तो आप मेमोराइज करें कि ये जो स्टेशन है या एज है तो उसमें 6 to 7 मंथ्स भी इनकी सिंथेसिस सर्फेक्टेंट की एंड देन रिलीज सिक्रीशन ऑफ द सर्फेक्टेंट। तो ये जो न्यू प्री मेच्योर न्यू बॉर्न है तो इनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ये एक फेटल कंडीशन है और देयर इज नीड टू ट्रीट दैट न्यू बॉर्न विद द स्ट्रॉन्ग मजर्स, अदरवाइज ये इनकी मॉर्टिलिटी रेट देयर इज ये समझ में। मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करूंगा, ये तो हमने लंग को डिस्कस किया, लेकिन एक चीज और भी है जिसको कहते हैं thoracic केज। और thoracic केज का भी रोल है एक्सपेंशन ऑफ लंग में। thoracic केज उनका भी रोल है। thoracic इफेक्ट ऑफ द thoracic केज एक टॉपिक है, गाइटन में दिया है, इफेक्ट ऑफ द thoracic केज ऑन द लंग एक्सपेंसिबिलिटी। द thoracic केज हैज इट्स ओन, ये जो thoracic केज की कैरेक्टरिस्टिक में है, ये इलास्टिक भी है और विस्कस कैरेक्टर भी है। ये इलास्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, यानी जिस तरह लंग्स में है वही इलास्टिन वही रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ thoracic केज में भी ये भी इलास्टिक है और विस्कस है। तो इसको हम कंपेयर करने के लिए यहाँ पर मैं भी मेरे पास ये एक डायग्राम आप ले लें, इसमें हम ये करते हैं कि कंपेयर करते हैं। एक लंग को हम लेते हैं विद इन द thoracic केज और एक लंग को दो कंडीशन देते हैं। एक लंग को हम लेते हैं आउटसाइड से केज, दिस इज द thoracic केज। एक लंग को हम लेते हैं इधर इनसाइड द thoracic केज और दूसरे को हम लेते हैं आउटसाइड द thoracic केज। ये जो लंग है आउटसाइड द thoracic केज, तो इसके लिए जो फोर्सेस है टू एक्सपेंड द लंग, डबल फोर्सेस की जरूरत है, यानी डबल फोर्सेस, डबल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द लंग present outside the thoracic cage as compared to the lung present inside the thoracic cage। यानी समझ में आए कि हम क्लेम कर रहे हैं कि दोनों लंग्स की कंप्लायंस जो है, एक्सपेंसिबिलिटी, क्वालिटी जो है, क्वांटिटी, कंप्लायंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं, ये एक्सपेंसिबिलिटी क्वालिटी या फंक्शन ऑफ द लंग है। तो यहाँ पर जो लंग आउटसाइड है thoracic केज से, तो उसमें लिए डबल फोर्सेस, डबल प्रेशर की जरूरत है टू एक्सपेंड द लंग, और यहाँ पर जो इनसाइड द thoracic केज है उसके लिए हाफ फोर्स, हाफ प्रेशर की जरूरत है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर टू एक्सपेंड द लंग। इसका मतलब ये है कि जो लंग की एक्सपेंसिबिलिटी है, हाफ role is played by the thoracic cage। और thoracic cage क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट मसल्स और चीजें हैं, तो और इलास्टिक है और विस्कस इन नेचर, उसमें विस्कस कैरेक्टर भी है। जब एक लंग को हम लेते हैं इनसाइड द thoracic cage, उसके लिए लेस फोर्स या प्रेशर की जरूरत है तो एक्सपेंड दैट लंग, और एक को हम लेते हैं आउटसाइड, उसके लिए डबल प्रेशर की जरूरत है। और ये जो
ये मैंने आप लोगों को कहा कि क्वालिटी ऑफ द लंग, एक्सपेंसिबिलिटी क्वालिटी ऑफ द लंग, इसको आप कंप्लायंस कह सकते हैं। तो दोनों लंग्स की जो कंप्लायंस है अंडर नॉर्मल कंडीशन, दैट इज 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ द लंग्स एलोन, और थोरेसिक केज को मिला के ये जो है इसकी एलोन जो एबिलिटी है या इसकी एलोन जो कंप्लायंस है, दैट इज 110 milliliter per centimeter. So this was all about thoracic cage का भी रोल है in the expansion of the lungs. एक और भी टॉपिक है कि ये जो हम कहते हैं कि ये एक्सपेंसिबिलिटी thoracic cage का, तो ये work of the breathing. You know that the respiration is basically composed of two main part है, one is the inspiration, the second one is the expiration. और इसमें जो वर्क हम कहते हैं, हमने क्लेम किया कि एक्सपायरेशन जो है ये जिस तरह हमने कहा था एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट था। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट दैट वाज अ डाउनहिल प्रोसेस, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस, और उसमें इतना मुश्किल नहीं था, ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस वो रिस्पॉन्सिबल थी। और उसमें जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उसमें वी आर क्लेमिंग दैट इज अपहिल प्रोसेस, that is effortful process and there is need for extra energy. Uphill है, वो downhill है, energy independent, only the kinetic energy of the molecule. Same is the situation here. मिसाल ले देता हूँ, just assume करते हैं। तो यहाँ पर inspiration and expiration, during inspiration सारे मसल्स की कंट्रैक्शन भी है, रोल भी है, उनकी स्ट्रेचिंग भी है, कंट्रैक्शन भी है, there is need for energy. While in case of expiration that is downhill process, there is no need for extra energy, only that expiration is caused by the elastic recoil of the lungs, and the chest cage, right? So और ये जो इंस्पायरेशन में जो वर्कलोड है, जो वर्क ऑफ द ब्रीदिंग है, इसको फिर हम 3 में सब डिवाइडेड करते हैं, 3 फ्रैक्शन में सब डिवाइडेड करते हैं। एक वो फ्रैक्शन है that required to expand the lung against the lung, यानी that required to expand the lung against the lung and elastic forces of the, यानी एक लंग और चेस्ट की जो इलास्टिक फोर्सेस है उनके अगेंस्ट, यानी एफर्ट्स है, इनवर्ड एयर की मूवमेंट है, तो लंग को एक्सपेंड करना, एक तो लंग के अगेंस्ट जो उनकी इलास्टिक फोर्सेस है, और एक जो चेस्ट के इलास्टिक फोर्सेस है उनके अगेंस्ट ये एफर्ट, ये कोशिश है, ये एक्सपेंड करना है। और सेकंड क्या करते हैं जब इनर, और इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्लायंस वर्क। क्या कहते हैं? कंप्लायंस वर्क या इलास्टिक वर्क। और सेकंड जो फ्रैक्शन है that required to overcome the viscosity of the and chest wall structure. Viscosity by definition resistance against the flow. Viscosity क्या है? Resistance against the flow. जो फिजियोलॉजी में विस्कोसिटी का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस। ब्लड की विस्कोसिटी को हम सब डिवाइडेड करते हैं, ब्लड विस्कोसिटी, प्लाज्मा विस्कोसिटी, सीरम विस्कोसिटी। अगर चांस मिले तो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ब्लड विस्कोसिटी सब डिवाइडेड इनटू 3, ब्लड विस्कोसिटी, प्लाज्मा विस्कोसिटी, सीरम विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी ग्रेटर है, द रीजन इज दैट कि उसमें प्रोटीन्स भी है, सेल्स भी है। प्लाज्मा विस्कोसिटी उससे कम है क्योंकि उसमें जो सेल्स है आउट है, लेकिन प्रोटीन्स उसमें है। सीरम विस्कोसिटी उससे भी कम है क्योंकि उससे ये जो प्रोटीन्स है उसको काफी हद तक निकल जाते हैं। सो हियर वन इज दैट इज
3 fraction में that require to expand the lung against the lung and elastic chest elastic forces, that is called compliance work या elastic work. Second, that require to overcome the viscosity of the lung by itself and the viscosity of the chest wall structure, that is called tissue resistance work. And the third one, that required to overcome airway resistance to move into the lung, that is called airway resistance. So yeah, this was all about the compliance of the lung. तो अब मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप 2 मिनट्स के लिए आप लोग रेस्ट करें और फिर उसके बाद क्वेश्चंस आंसर पे आ जाते हैं फॉर 2 मिनट्स आप यू टू टेक रेस्ट. सिर्फ गुनाह माफ नहीं होंगे